Lecture number 21, Contract Act, Module 3, Sale of Goods Act. We have already covered with regard to differentiation between a sale and agreement to sale, and have also done essentials of sale, and have done certain various important definitions with respect to Sale of Goods Act. Now going for the next subtopic, conditions and warranties. Now see, goods are sold on certain conditions, and those conditions form part of the contract. So to put it in a very precise manner, see, if there is a condition of the sale and that condition is violated, that will give the buyer a right to repudiate the contract, that is cancel the contract, to nullify the contract and return the goods and take refund. Whereas there is another thing called as a warranty. Warranty, we know well that, say for example, you buy a mobile, you get 1 year warranty. In warranty period, if any defect arises which can be cured, which can be repaired, and that fault can be removed, in that case you will get removal of that fault or that defect free of cost. And only if it is beyond repair, then they might refund your amount. So when it comes to violation of a warranty, that ideally does not give right to repudiate the contract. That will give rise only to compensation, that is damages, or getting that particular defect removed at the cost of the manufacturer. So this is the difference that initially we need to understand. While entering into a contract of sale, both seller and buyer make representations of statements with reference to the goods. Such representations or statements differ in character and importance. So उसका character और importance दोनों अलग अलग होते हैं. Further, it may or may not form part of the contract. If the representation forms part of contract of sale, it is called as a stipulation. Stipulation is a condition. Stipulation means a condition. Every stipulation is not of equal importance. तो जो मेन होता है सेल का मेन कंडीशन, दैट इज कॉल्ड एज ए कंडीशन, एंड स्टिपुलेशन जो कोलैटरल होता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ वारंटी. दैट वी विल क्लैरिफाई. फर्स्ट लेट अस सी व्हाट डेफिनेशंस इज. A condition is a very important in a contract of sale. Now let us see what is the definition. Section 12 subsection 2 of the Sale of Goods Act defines condition: a stipulation essential to the main purpose of the contract. A stipulation essential to the main purpose of the contract, breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated, means cancelled. You can cancel off. So if any condition is violated, that will give the buyer a right to repudiate the contract, cancel the contract. From the definition, it is clear that condition is an important representation which forms the crux of the contract, base, crux. And it is not true, and if it is not true, the buyer can terminate the contract and claim for refund of price or of damages. So अगर damage हुआ है तो damage या वापस देके कॉन्ट्रैक्ट कैंसल, रेप्यूडिएट एंड रिफंड मी माई अमाउंट. दैट कैन बी डन इन केस ऑफ अ कंडीशन. लेट अस सी एन एग्जांपल. ए बाइज फ्रॉम बी अ हेयर ऑयल. ए बाइज फ्रॉम बी अ हेयर ऑयल एडवर्टाइज एज प्योर कोकोनट ऑयल, शुद्ध नारियल तेल, प्योर कोकोनट ऑयल. द ऑयल टर्न्स आउट टू बी मिक्स विथ हर्ब्स. सो क्वालिटी का प्रॉब्लम हो गया, एंड कंडीशन क्या था? इट वॉज बॉट ऑन कंडीशन दैट इट इज अ शुद्ध कोकोनट ऑयल, इट्स अ प्योर कोकोनट ऑयल. ए कैन रिटर्न द ऑयल इफ अनयूज्ड एंड क्लेम रिफंड ऑफ द प्राइस. ये एग्जाम्पल हो गया. देन टाइप्स ऑफ कंडीशंस. कंडीशंस आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज एक्सप्रेस कंडीशन एंड द अदर इज इम्प्लाइड कंडीशन. जो कॉन्ट्रैक्ट में पड़ा था वही एक्सप्रेस, विच इज आइदर स्पोकन बाय वर्ड्स ऑफ माउथ और इन राइटिंग, एंड इम्प्लाइड विच आर टू बी इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस. लॉ विल एज्यूम दैट वो है, इवन इफ नॉट स्पेसिफिकली
talked about by the buyer or seller. Express condition are those stipulations specifically spelled out by the contracting parties. On the other hand, implied conditions are those stipulations which the law implies into a contract of sale. In case of a conflict between express and implied conditions, express conditions shall prevail. So express will always prevail क्योंकि वो प्रूफ है, इट इज़ आइदर इन राइटिंग और रिटर्न, तो उसको प्रूव करना ईजी होता है कंपेरेटिवली. इम्प्लाइड कंडीशंस आर कंडीशंस विच आर प्रिज्यूम, मतलब वो एज्यूम करके चलना पड़ता है. यू हैव टू एज्यूम, प्रिज्यूम टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड. तो एक्सक्लूडेड होगा तो वो वैसे लिखा हुआ रहता है दैट दिस इज एक्सक्लूडेड. सी फ्रेंड्स, दैट इज द रीज़न वाई इवन आई एम अ विक्टिम ऑफ दैट थिंग. व्हेन यू बाय समथिंग, जब भी आप लोग कुछ खरीदते हो ना, डू यू टेक द पेन्स टू रीड द कंडीशंस, द वारंटी, या जो सेल इनवॉइस होता है उसके ऊपर बहुत कुछ प्रिंटेड रहता है. वी डोंट बॉदर टू. मोबाइल ले लिया, पैसे दे दिए, पेमेंट हो गया, उस पर डेट डाल दिया उसने, सो दैट सिग्निफाइज दैट इट हैज़ बीन सोल्ड ऑन सो एंड सो डेट. सो एक ईयर का, एक साल का वारंटी एप्लीकेबल हो गया. एंड वी डोंट रीड, इवन आई डोंट रीड एट टाइम्स के क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या कंडीशंस है, एंड देन देर आर सरप्राइजेस. तो ये एक हैबिट डाल देना चाहिए. इनवॉइस, कंडीशन, वारंटी ठीक से पढ़ के ही बाद में लेना चाहिए. एक्सप्रेस कंडीशन तो वेरी सिंपल, वो रिटर्न या तो फिर बाय वर्ड्स ऑफ माउथ होता है. कमिंग टू implied conditions are of 8 types. Implied conditions are of 8 types and you expect a question on that. There are 8 implied conditions. They are: number 1, condition as to title. Then number 2, we will discuss that in detail. Number 2, condition as to description. तो description match होना चाहिए. Then condition as to sample. Sample must match the goods which are actually being sold. Conditions as to sample and description. Then 5th, condition as to quality or fitness for the buyer's purpose. So that must fit your purpose. जो चीज़ के लिए आप लेना चाहते हो वो सर्व करेगा तो ही लेने में मतलब है. Then conditions as to merchantable quality, के क्वालिटी क्वांटिटी से हर एक चीज़ का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है. क्वालिटी इज़ डिफरेंट, क्वांटिटी इज़ डिफरेंट, पोटेंसी इज़ डिफरेंट, प्योरिटी, सब अलग अलग कंसेप्ट है. देन 7, कंडीशन एज टू होलसमनेस. एंड 8, कंडीशन एज टू ट्रेड यूसेज, के उसका यूसेज सर्टिफाइड होना चाहिए. दैट शुड बी नोन इन द मार्केट. नाउ लेट अस डिस्कस विद दीज ऑल 8 implied conditions one by one. Number 1, condition as to title. There is a implied condition on part of the seller. तो जब भी सेलर गुड्स बेच रहा है, इट इज़ अ implied condition that he must be owner of the goods. वरना वो दुकान वाला जो शॉपकीपर है वो आपको मेरे गुड्स बेच देगा. विल दैट डू? दैट विल नॉट डू. या आपके गुड्स मुझे बेच देगा तो चलेगा नहीं. देन यू विल कम एंड क्वेश्चन, अरे मेरा गुड्स उसको कैसे बेच दिया. सो ही मस्ट बी ओनर ऑफ दैट गुड. दैट इज द फर्स्ट implied condition. There is an implied condition on part of the seller that in case of sale, he has the right to sell the goods. And in case of agreement to sell, मतलब जो future date में होता है वो, he has or he will have a right to sell the goods at that time when the property is to pass. If the condition is not satisfied, the buyer can cancel the contract. Buyer contract को cancel कर सकता है. Second, sale by description. Sometimes goods are sold by description. In such cases, the goods sold must correspond with the description. That is, it must be the same as described. If it is not so, the buyer may reject the goods. Sale by description will include 2 things. Number 1,
where the buyer has never seen the goods and buy them only on basis of description by the seller. And number 2, where the buyer has seen the goods but he buys them only on basis of description given by the seller. Example, now see, A buys a machine described by seller as though old, it has a good as new look, नया ही दिखता है. Buyer buys it without seeing. A relies on description given. It turned out to be old and rusted. पूरा जंग खाया हुआ मशीन था. It was held that buyer could reject the machine. वो रिजेक्ट कर सकता है. And one more example, a buyer buys napkins in auction which were described as dating to 17th century. 17th century के napkins है. Though buyer saw the napkins relied on the description, but he found it belonged to 18th century. Held that the buyer could reject the goods. तो अगर मैच नहीं करेगा, those goods can be rejected by the buyers. Then third, sale by sample. Sometimes contracts are entered on basis of sample given. In such cases, the following conditions must be satisfied. फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड. अभी देखो, सैंपल दिखाया जा रहा है और वो हिसाब से आपको गुड्स बाद में मिलेंगे, तो वो मैच होना चाहिए. इन सच केसेस फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड. नंबर 1, द क्वालिटी ऑफ द बल्क ऑफ द गुड्स सप्लाइड शैल बी सिमिलर टू द क्वालिटी ऑफ द सैंपल. नहीं तो क्या होगा, देखो आप समझो कोई राइस का डीलर है, राइस बेच रहा है. ही विल कम यू एंड शो सैंपल कि मेरे पास बासमती राइस है. सो बासमती राइस का पॉलिश, उसका दाना इज़ ऑफ अ फाइन क्वालिटी एंड वो बिरयानी करने में, पुलाव करने में यूज़ होता है. रेगुलर बासमती शायद कोई नहीं खाता खाने के लिए. देन यूजुअली पीपल प्रीफर कोलम या दूसरे टाइप के जो राइस होते हैं जो स्लाइटली चीपर है, दोज आर प्रीफर्ड इन द स्टेपल डाइट. लेकिन ऐसा कुछ स्पेशल इवेंट होगा जो दिन कुछ स्पेशल खाना बन रहा है तो आप बासमती प्रीफर करते हो. तो बासमती आपको दिखाया सैंपल के बहुत अच्छा, देखो लंबा दाना है, जस्ट सी द राइस का जो दाने हैं वो, उसका पॉलिश देखो, उसका क्वालिटी देखो, एंड देन जो आपको एक्चुअली गुड्स दिया जा रहा है वो अलग है, तो यू कैन रिफ्यूज दोज गुड्स. सेकेंड, so first condition, the quality of bulk of goods supplied shall be similar to the quality of the sample. Quality match होना चाहिए. Second, the buyer is given a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample. The buyer is given a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample. And thirdly, the goods delivered shall be free from any defect. कोई defect उसमें नहीं होना चाहिए. Which renders them unmerchantable, which is not apparent on reasonable examination. शायद जो reasonable examination से पता नहीं चलता कि इसमें कुछ fault है, वो नहीं बेचा जाना चाहिए. So these are the three conditions when it comes to sale by sample. Then sale by sample as well as by description. Number 4, sale by sample as well as by description. If the sale is by sample as well as by description, the goods of the goods by the seller, then the goods supplied must correspond to both sample and description. तो sample और description के बराबर हिसाब से ही वो होना चाहिए. If they correspond to sample and not to the description or vice versa, the buyer can reject the goods. Example, A shows a sample of tea, chai patti, and says Darjeeling tea, in which case it must correspond to the sample also by description. तो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से भी सेम चाय पत्ती होना चाहिए क्वालिटी वाइज. देन फिफ्थ, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस. कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर द बायर्स पर्पज. एज अ रूल देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय एनी पर्टिकुलर purpose of goods supplied under a contract of sale. As a rule, there is no implied condition as to quality or fitness by any particular purpose of goods supplied under a contract of sale. The doctrine of caveat emptor applies. However, the Act provides some exceptions to this rule
दैट इज देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन एज टू द क्वालिटी और फिटनेस फॉर द बायर्स पर्पज। अभी देखो कैवेट एम्प्टर आगे नेक्स्ट सब टॉपिक है। कैवेट एम्प्टर मीन्स व्हाट? बायर बी अवेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैवेट एम्प्टर? द बायर बी अवेयर। आप क्या खरीद रहे हो खुली आंख से देखो, इसलिए बोलते हैं ना जागो ग्राहक जागो। उसका मतलब वही है कि आप आँख खोलो और जो आपको सूट करता है वही लो, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर परचेज। However, the Act provides some exceptions to this rule, and there is an implied condition as to quality or fitness for the buyer's purpose. Now, let us see what the exceptions are. Number one, where the goods are ordered for a specific purpose and the purpose is known made to the seller. So, इसका एग्जाम्पल देता हूँ। आई गो फॉर बाइंग शूज़, और मैं उसको बोलता हूँ कि अरे मुझे शूज़ जो चाहिए ना वो रनिंग के लिए चाहिए, मॉर्निंग का वॉक के लिए वगैरह, स्नीकर्स कैटेगरी, स्पोर्ट्स शूज़। तो स्पोर्ट्स शूज़ कैसा होता है? लाइट होता है, उसका वजन बहुत कम होना चाहिए। दैट सोल इज स्पेशली मेड टू रिड्यूस द इम्पैक्ट। जो झटका बैठता ना वो कम करने के लिए सॉफ्ट स्पॉन्जी सोल होता है। उसमें बेस्ट शूज़ आर नाइकी एयर या रिबॉक का, जो रिबाउंड होता है ना, मतलब पैर डालो तो वो थोड़ा बाउंस करेगा एंड यू विल नॉट गेट दैट झटका। तो वो जो इम्पैक्ट होता है ना, जो ग्राउंडिंग के साथ होता है, वो नहीं लगेगा। सो आई वॉन्ट शूज़ फॉर दैट। तो फॉर दैट आई कैन नॉट बी गिवन लेदर शूज़, जो यूजुअली ऑफिस में वगैरह यूज़ होते हैं। इसके लिए फॉर्मल वेयर, तो ऑफिस में आने के लिए या कॉलेज में आते हुए हम लोग जो जूते पहनते हैं वो फॉर्मल होते हैं। एंड जो बाहर घूमते वक्त पहनते हैं, वॉकिंग के लिए जाते हैं, जिम में पहनते हैं या कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी में पहनते हैं, वो अलग किस्म के होते हैं। सो इफ़ यू मेक योर पर्पज नोन टू द पर्सन, टू द सेलर, वो अकॉर्डिंगली वो देना चाहिए, देन कैवेट एम्प्टर विल नॉट अप्लाई। और एक एग्जांपल देता हूँ, स्पोर्ट में भी अलग अलग स्पोर्ट्स है। सो अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग एक्टिविटी के लिए आपको अलग अलग शूज़ की ज़रूरत होती है। नाउ सी, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट शूज़ फॉर जॉगिंग, तो मैंने आपको अभी बताया कि इम्पैक्ट लेने वाला शूज़ होना चाहिए, सॉफ्ट, स्पॉन्जी एंड स्नीकर्स। नाउ इफ़ यू रिक्वायर शूज़ फॉर क्रिकेट, तो क्रिकेट कहाँ खेला जाता है? ग्राउंड में खेला जाता है और मिट्टी पे खेला जाता है। एक पिच होता है जहाँ पे खेला जाता है एंड द फील्डर्स आर रनिंग ऑन द फील्ड जहाँ पे ग्रास होता है, तो सॉफ्ट ग्राउंड है। तो वहाँ पे पहनने के लिए उनको स्पाइक्स यूज़ होते हैं। तो जो आगे का हिस्सा होता है ना, ज्यादा चौड़ा म्हणतात, मतलब हिल छोड़ के जो आगे का हिस्सा होता है, द फर्स्ट हाफ ऑफ योर लेग, उसमें स्पाइक्स होते हैं, ऐसे कीले होते हैं, विच गिव अ ग्रिप टू द रनर। तो वो यूज़ होता है शूज़ वहाँ पे। देन एथलेटिक्स में आप देखो स्पाइक्स यूज़ होते हैं, उसके जो कीले होते हैं ना वो थोड़े बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू क्रिकेट। देन सी फुटबॉल में स्टड्स यूज़ होते हैं, लकड़ी के कीले होते हैं लेकिन राउंड और अलग होते हैं, क्योंकि फुटबॉल कभी कभी कीचड़ में भी खेला जाता है। तो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो बदलते जाएगा। नाउ सी, आई एम इंटरनेशनल वेट लिफ्टर, मैं इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी हूँ, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट करके भी मेडल जीते हुए हैं। मुझे वेट लिफ्टिंग के लिए शूज़ कैसे चाहिए? प्योर लेदर के, कड़क सोल एंड 1 इंच का उसको सोल होना चाहिए। हिल जो होता है ना, हिल, वो 1 इंच का होना चाहिए। एंड वो शूज़ का मेन पर्पज़ क्या है? टू गिव स्टेबिलिटी टू माई बॉडी एंड गिव अ वेरी नाइस एंड हार्ड, रॉक हार्ड ग्रिप। तो वो शूज़ पहन के अगर मैं जॉगिंग को जाऊँगा तो चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि पैर दुखेगा। वो शूज़ में तो यहाँ से वहाँ चलना भी मुश्किल हो जाता है। जिम में खाली वर्कआउट करते हो और आप वेट लिफ्टिंग के लिए यूज़ करोगे उतना टाइम ही यूज़ कर सकते हो उसको। एंड उसको ग्रिप के लिए भी है रबर भी लगाते हैं नीचे के, और भी अच्छी ग्रिप मिले। तो वो होता है। कभी कभी दूसरा स्पोर्ट होगा टेबल टेनिस के जैसा, वहाँ पे सॉफ्ट शूज़ होते हैं कैनवस के, लेकिन उसका सोल कैसा होता है? जो ग्रिप देना चाहिए, क्योंकि उनके से एक तरफ झुक के झटका मारना पड़ता है, फटका मारना पड़ता है, शॉट मारना पड़ता है। तो दैट मस्ट गिव गुड ग्रिप ऑन अ हार्ड सरफेस। तो अलग अलग स्पोर्ट के अलग अलग शूज़ होते हैं। तो अगर मैंने अपना रिक्वायरमेंट बताया दैट मुझे शूज़ चाहिए किस लिए? ऑफिस फॉर्मल वेयर, स्पोर्ट के लिए चाहिए, हाइकिंग के लिए। अभी हाइकिंग का जूता आप देखो अलग होता है, हंटर शूज जो होते हैं उसका सोल अलग होता है, उसका ग्रिप अलग होता है। दैट इज़ फॉर ग्रिपिंग, कि आप ऊपर चढ़ जाओ। एंड थोड़ा रफ यूज़ के लिए होता है, तो वो आपको एक जगह पे यूज़ होता है, एक जगह पे। सो वेयर यू मेक योर यूज़ नोन कि मुझे इस चीज़ के लिए, पर्पज़ के लिए चाहिए, एंड देन यू रिलाई अपॉन द सेलर, और वो आपको जो देता है वहाँ पे कैवेट एम्प्टर नहीं लगेगा। सो दैट इज़ द फर्स्ट एक्सेप्शन।
देन सेकंड, वेयर द बायर रिलाइज ऑन सेलर स्किल एंड जजमेंट। सेलर बोलता है ना, अरे आप आँख बंद करके ले लो साहब, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम आ गया तो आपको पैसे वापस कर दूंगा। सो वेयर यू आर रिलाइंग अपॉन हिज एक्सपर्टाइज, वेयर यू आर रिलाइंग अपॉन हिज skill and judgment, there caveat emptor will not apply. Then third, where the goods are purchased under a trade name, कोई पर्टिकुलर ट्रेड के नेम के अंडर गुड्स अभी खरीदे जाते हैं तभी। एंड फोर्थली, वेयर द गुड्स आर बॉट ऑन बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। Here there is an implied condition that the goods are of merchantable quality. क्वालिटी देखो, क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्यूरिटी सब अलग अलग होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, क्वालिटी। अभी देखो, अगर हम लोग बात करते हैं इनर वेयर्स की, जो अंदर कपड़े हम लोग अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, वो अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, उसका इलास्टिक बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो चुभेगा। या बनियान होगा, जो मतलब जो मेल्स पहनते हैं, बनियान जो अंदर पहना जाता है, वो कैसा होना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए और अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। अगर लो क्वालिटी का अभी रास्ते पे भी मिल जाते हैं अंडरगारमेंट्स, कोई मार्केट में भी मिल जाते हैं, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या होता है, क्वालिटी का प्रॉब्लम होता है। सो क्वालिटी, अभी देखो ज़्यादातर इसमें कैसे VIP या कुछ अभी नए ब्रांड्स है, रूपा, माइक्रो, ये और कौन सा अच्छे अच्छे बनियान आए हुए हैं। एंड आई डोंट नो वाई देर इज़ इन मार्केट मेल्स के लिए जो अंडरगारमेंट्स होते हैं वो लेडीज़ के नाम से होते हैं, पता नहीं, रूपा तो लड़की का नाम है, तो मर्द का कपड़े आप क्यों नाम से बना रहे हो, दैट अपार्ट। लेकिन वो कैसे होता है, दैट यू गो बाय क्वालिटी, यू गो बाय क्वांटिटी। तो क्वालिटी के हिसाब से आप देखो, या देखो अभी नमक हो टाटा का, टाटा नमक, वाई, बिकॉज टाटा नमक इज़ फेमस फॉर व्हाट, फॉर द क्वालिटी, फॉर द प्यूरिटी, कि वो सॉल्ट एकदम कलरलेस हो, उसको पानी में डाल के मिक्स करो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें नमक मिला हुआ है। नहीं तो यूजुअली क्या होता है ना, सॉल्टी वाटर होगा, सलाइन वाटर होगा, तो एक किस्म का उसमें एक ये आ जाता है, नो, कलर थोड़ा सा फेड हो जाता है, दैट वाटर यू कैन मेक आउट कि ये पानी अशुद्ध है। देन व्हाट इज अनदर स्पेशलिटी ऑफ टाटा सॉल्ट, दैट इट वाज द फर्स्ट सॉल्ट दैट वाज आयोडाइज, आयोडीन वाला नमक। तो इसलिए ऐड के कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में दे रहे, तो नमक हो टाटा का और जूता हो बाटा का। अभी तो बहुत सारे नए ब्रांड्स आ गए, लेकिन आज भी बाटा का आप देखो, पावर वगैरह ब्रांड आज भी बहुत अच्छे चलते हैं। या फॉर्मल में आप देखो, हश पपीज, वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट फॉर्मल शूज़, 3-4 हज़ार रुपये के जूते आते हैं, लेकिन अंदर एयर सोल होता है एंड इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। आई हैव यूज्ड दोज शूज़, बहुत एक्सेलेंट क्वालिटी के होते हैं, बहुत कॉस्टली है, लेकिन मतलब एक बार ले लो तो कम से कम 2-3 साल चलना चाहिए, ऐसा है। सो सी, गुड्स आर ऑफ द क्वालिटी, तो क्वालिटी, देन सेकंड क्वांटिटी। क्वांटिटी, अगर आप वो पैकेट है, शुगर पैकेट है, उसके ऊपर लिखा है 5 किलो और वजन क्या तो 4 किलो ही है, नो, दैट मस्ट मैच, तो वहाँ पे क्वांटिटी मैच होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज पोटेंसी। पोटेंसी मतलब कैसा होता है ना, एक लेवल होता है, केमिकल्स में देखो, कुछ इसमें देखो, तो पोटेंसी डज नॉट मैच, तो वो मैच नहीं हो रहा है। और प्यूरिटी अब देखो, गोल्ड, सिल्वर जैसे जो नोबल मेटल्स है, महंगे मेटल्स है जो बिकता भी, गोल्ड का देखो प्यूरिटी कैसे पता चलता है, 24 कैरेट सोना, 23 कैरेट सोना, उससे लोअर 18 कैरेट सोना, 15 कैरेट सोना, मतलब उसमें ब्रास ज़्यादा मिक्स होता है। नाउ सी, फॉर प्यूरिटी 24 कैरेट सोना इज़ द बेस्ट, लेकिन अगर आप उसको टफनेस में देखो तो बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसको टफ करने के लिए उसमें कुछ वो डालना पड़ता है जिसको ब्रास बोलते हैं, तांबा, तो तांबा उसमें मिक्स करना पड़ता है टू गिव दैट ऑर्नामेंट सम स्टेबिलिटी। नहीं तो क्या हो जाएगा, फूंक मारेगा तो उड़ जाएगा एंड वो टूट जाएगा। सो जितना प्योर होगा उतना उसका वीकनेस ज़्यादा होता है, जितना इम्प्योर होगा उतना उसमें मिक्सचर बढ़ जाता है और स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ये हो गया सो क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी एंड प्योरिटी। देन अभी देखो, गुड्स बॉट आर ऑन बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द सेलर who deals in goods of that description. Here there is an implied condition that the goods are of mercantile quality. अभी उसमें एग्जांपल देखो आप, एक हॉट वाटर बैग होता था ना, अभी तो सब इलेक्ट्रिक आ गया है, लेकिन पुराने ज़माने में एक हॉट वाटर बैग आता था, उसमें गर्म करके पानी डालने का, एंड सेकने के लिए काम आता है। तो वो
सेकते हो, अगर वो बैग फट गया तो गर्म पानी आएगा और लगेगा, लग गया तो जल सकता है। तो ऐसा एग्जाम्पल है दैट वेयर पी बाइज अ हॉट वाटर बॉटल फ्रॉम एल, एक केमिस्ट से बॉटल ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एल। एल ने बोला कि बहुत अच्छा क्वालिटी का है। आफ्टर फ्यू डेज वाइल यूजिंग द बॉटल इट बर्स्ट, वो बॉटल फूट गया एंड इंज्यूर्ड पीज वाइफ। इट वॉज हेल्ड दैट पी वॉज एंटाइटल्ड टू क्लेम डैमेजेस। बहुत पुराना केस लॉ है। या हॉट वाटर बैग आप देखो, वो अभी फ्लैमिंगो वगैरह तो सब ये आ गया, क्या बोलते हैं ना उसको, इलेक्ट्रिक वाला आ गया, उसको सीधा पिन डालो और ऑन कर दो, वो हीट हो जाएगा, हीटर है उसमें। लेकिन पहले के ज़माने में कैसे पानी गैस पे गर्म करना पड़ता था, फिर वो गर्म बैग में भरो एंड देन उसको बंद करो एंड देन उसको लेके बैठो सेकने के लिए। तो उसका क्वालिटी अगर बराबर नहीं होगा, तो मैंने बोला आई एम द सेल, और मेरे बोला अरे एकदम मस्त क्वालिटी ले लो आप, कभी कुछ कंप्लेंट नहीं आया। और जब वो सो के सेक ला रहा था, वो बैग फट गया, क्वालिटी बराबर नहीं है एंड वो जल गया, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सो क्वालिटी अगर आपने उसके ऊपर डिपेंड करके उसके कहने से लिया है, देन ही इज़ लाइबल टू मेक दैट लॉस गुड। देन कंडीशंस एज टू मर्केंटाइल क्वालिटी, mercantile quality. The term mercantile has not been defined in the act. Courts have interpreted mercantile quality to mean, तो उसका मीनिंग कोर्ट ने खुद दिया हुआ है, वो लॉ में डिफाइन नहीं किया गया है। नंबर 1, इफ़ वन बाइज इट फॉर सेल्फ यूज दे शुड बी रीजनेबली फिट फॉर द पर्पज फॉर विच दे आर जनरली यूज, तो उसका जो यूज़ है वो फिट होना चाहिए। एंड नंबर 2, इफ़ दे आर बॉट फॉर रीसेल, मतलब आप लेके फिर उसको बेचने वाले हो किसी और को, इट शुड बी कमर्शियली सेलेबल। तो माल कैसा होना चाहिए, गुड्स कैसे होने चाहिए कि लेके कोई और खरीदना चाहिए उसको। सेलेबल अंडर डिस्क्रिप्शन बाय विच दे आर नोन इन द मार्केट एट देयर फुल वैल्यू, तो जितना उसका वैल्यू उतने में वो बिकना भी चाहिए। देन 7, कंडीशन एज टू होलसमनेस। This condition is a part of mercantability. It is applicable to eatables. Wholesomeness मतलब कैसा ना, वो प्योरिटी से ही कंसर्न है। इट मस्ट बी फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो खाने के लिए फिट होना चाहिए। अभी ऑयल देखो, ऑयल तो सब अलग अलग है, लेकिन जो खाने में यूज़ होता है ऑयल फॉर कुकिंग पर्पज़, वो ऑयल कैसा होना चाहिए, एडिबल ऑयल। एडिबल मीन्स जो खा सकते हो, ईटेबल, इट मस्ट बी ऑफ क्वालिटी ऑफ ईटिंग। अभी देखो कुछ ऑयल होगा वो मे बी फॉर अदर पर्पज है, तो वो खाने के लायक नहीं होगा। सो एडिबल ऑयल इज़ अ कैटेगरी जिसमें आप खाने का ऑयल देखो, जो हम लोग यूज़ करते हैं, सनफ्लावर या दूसरा कौन सा, गोदरेज, गिनी, कोई भी ब्रांड का आप तेल ले लो, तो वो एडिबल ऑयल कैटेगरी अलग होती है जो खाने के लिए यूज़ होता है। सो गुड मस्ट बी फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एग्जाम्पल, एफ बॉट मिल्क फ्रॉम ए, द मिल्क वॉज कंटेमिनेटेड विद टाइफॉइड जर्म्स। F's wives consumed the milk and got infected and got ill. So A was held liable for that condition of F's wife. C bought a bun from M. Bun, pav. The bun contained a stone which broke C's tooth. तो C ने खाना चालू किया, उसका दांत टूट गया, वो नीचे आ गया उसके मुंह के। तो it was held that C could recover damages. एंड लास्टली 8th one, कंडीशन इम्प्लाइड बाय ट्रेड यूसेज। तो एक ट्रेड यूसेज नाम की चीज़ होती है जो मार्केट प्रैक्टिस होती है, इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू दैट। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज मस्ट बी अनेक्स बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। एग्जाम्पल गिविंग, प्रिंटिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट ऑन मेडिसिन। तो मेडिसिन आप देखो, उसमें एक बैच लिखा हुआ था जिसमें प्रोड्यूस किया गया है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। एंड अभी तो मालूम है आपको, नया जो कंज्यूमर ये आया है उसके हिसाब से कभी कभी रहता है ना कि वैलिडिटी या उसका एक्सपायरी डेट होता है, उसमें लिखा रहता है बेस्ट टू बी कंज्यूम विद इन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। अभी दैट इज़ नॉट परमिसिबल। नाउ यू हैव टू मेंशन द डेट कि ये डेट तक वो फिट है एंड देन इट बिकम्स एक्सपायर्ड, वो क्वालिटी गया उसका। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर कंजम्पशन आफ्टर दैट पर्टिकुलर डेट। सो नाउ एज पर द न्यू कंज्यूमर रेगुलेशंस, रूल्स अंडर द कंज्यूमर लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोई भी एडिएबल चीज़ जो कंज्यूम की जाती है, या ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एप्लीकेबल होता है, तो सर्टन कॉस्मेटिक्स होते हैं ना,
मुंह पे लगाने का क्रीम या एनी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, मतलब जो खाने वगैरह की दवा है वो, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्रग्स। एंड कॉस्मेटिक में जो प्रोडक्ट्स होते हैं विको, या वो कौन सा मुंह गोरा करने के लिए लगाते हैं ना यार, फेयर एंड लवली या विको वज्रदंती, ऐसे कुछ जो क्रीम्स होते हैं उसका एक्सपायरी डेट भी होना चाहिए, दैट इट इज़ नॉट बेस्ड बिफोर 16 मंथ्स 18 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। नो, अभी कैसा सीधा मैन्युफैक्चर, बैच नंबर, मैन्युफैक्चर सो एंड सो डेट एंड एक्सपायरी डेट, वो क्लियर कट होना चाहिए। So printing and manufacturing, expiry date of medicine. So this is about conditions. Warranties we will do in next lecture, and then we will do a comparative thing, that differentiation. कभी कभी comparison आ जाता है, differentiate between or compare between a condition and warranty. So वो condition आपको आना चाहिए, condition and warranty both you must do well. So condition we have completed today, warranties we will be doing in next lecture.